1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, रेवलेशन चैप्टर 1, डैनियल 11 चैप्टर, 12 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और दानियल की पुस्तक 11 अध्याय 12 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि इस समय पिता परमेश्वर आपने हमें वचन के अधीन लाया है। धन्यवाद कि हम प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में शुरू कर रहे खुदा परमेश्वर। पूरे साल का सफ़र खुदा परमेश्वर आपने हमारे संगति में रहकर बड़े पिता अनुग्रह के साथ हमको चलाया। अच्छे तरह से हमारे व्यक्ति को बदल कर पिता परमेश्वर और अच्छा समय देकर पिता परमेश्वर हमारे जीत का झंडा तूने ऊंचा किया। तुझे धन्यवाद करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के अंदर भी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो। अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको और एक बार बोल देती हूँ, अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा, हम ये वचन को सिर्फ एक वचन बोलकर पढ़ेंगे लेकिन कुछ समझ नहीं पाएंगे। आप चाहिए पवित्र आत्मा हमको। हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा, आप हमको अज्ञानता में से बाहर निकालिए, हमें ज्ञानी बनाइए और परमेश्वर के सोच के साथ हमको भर दीजिए ताकि हम परमेश्वर के लाभ के काम कर सके, परमेश्वर के विरोध ना जाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 1, रेवलेशन चैप्टर 1 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। द प्रीफेस, द कमिंग ऑफ क्राइस्ट। The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. John, to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion for ever and ever. Amen. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man,
clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, and as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged, as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive for evermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। 7 कलीसियाओं का अभिवादन। 4 वचन से आगे। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलो था और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यूहन्ना को मसीह का दर्शन। 9 वचन से आगे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मिरना और पिरगमोन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन
पाल के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। इफिसुस को संदेश। बस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदा परमेश्वर के आत्मा, आप हमारे साथ हो जाइए। ये वचन हमको सीखने के लिए मदद कीजिए, हमें इसकी रहस्य भेद मिलने दीजिए, ताकि हम अज्ञान ना रहे और हम परमेश्वर के आज्ञा पालन में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के राज्य के लिए लाभदायी बने। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।